In brief, I'll just introduce myself. My name is Shabri. I have done my teacher's training diploma from Gandhari Intramodal, Thane, as well as I have learned my yoga instructor course from Bangalore, S. Vyasa University, and I have done my advanced diploma in yoga and philosophy from Mumbai University. So today's our subject is yoga for back pain. We know that today's fast life, we all are suffering from that. That fast life, competitive life. So back pain is a growing global problem nowadays. And back pain is most common problem I have come across with my clients whenever I take classes. The main reason to come is my back paining very seriously. And more than 80% of people once in a lifetime, they face back pain. Now, what are the reasons? Please, anybody can let it be an interactive session. So, what are the reasons for back pain? General back pain. Continuous sitting in one position for long time. Correct. Perfect. Bad postures. Bad postures, right? Lifting weights. Lifting weights. Right. Heavy weight. Heavy weights. Right. Could be due to sports injuries. Sports injuries. Yes. These are some reasons. According to the National Institute of Health, USA, these are sitting and standing for long hours, as Sir said, sitting and standing in incorrect postures, then lack of proper exercise. Obesity is one of the reasons due to which you get back pain. Smoking, weak back muscles, because our ancient people, they had a very strong spinal cord, but nowadays we have very weak back muscles. These are the common causes, but most important reason, nobody has told me that it's the stress. Because some other reasons are also there, that when continuously you are in a forward slouch, like especially forward slouch, maintaining poor and bad postures, wrong sleeping positions even, and even wrong sleeping, improper sleeping surface also. आपका बेडिंग अगर अच्छा नहीं है, कुछ उसमें डिस्टर्बेंसेस है, then also you get back pain. Lack of flexibility of back contributes towards lower back element, which increases according to the age. जैसे आपकी age बढ़ रही है, you will face this problem. So these are the most common reasons. Now, इतना सब देखने के बाद we come to know that misuse of body and misuse of mind. These are the main two reasons due to which we face back pain. Misuse of body, all incorrect postures, like just now we discussed, and misuse of body में emotional disturbances and mental stress. Daily routine में सुबह उठने से each and every moment, कभी high जा रहे हैं, कभी low आ रहे हैं, कभी high जा रहे हैं, कभी low. दिन में कितनी बार? How many times? कई बार. Have you anybody calculated that? No किसी ने कुछ कहा होता, बॉस ने ये दिया है टारगेट कंप्लीट करना है, वी आर ऑन हाई, ये है बस भागा दौड़ी में. सो लॉट ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, वो आपके माइंड को मिसयूज में डाल देता है. सो दीज आर द मेन रीजंस फॉर जनरल बैक पेन. देन आवर इनकरेक्ट पोस्चर्स लीड इम्बैलेंस टू स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ आवर बैक. जब आप नहीं बैठ रहे हो ठीक से, तो सारे आपके मसल्स को वो इम्बैलेंस कर देता है और डीजेनरेशन होता है, और उससे आपको क्रॉनिक बैक पेन होता है. इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से क्या हो रहा है? तो ड्यू टू स्ट्रेस, मॉडर्न एज वेल एज कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल पुट एक्सेसिव डिमांड्स ऑन कोपिंग मैकेनिज्म्स व्हिच लीड्स टू बैक पेन. अनदर एस्पेक्ट, ह्यूमन इवोल्यूशन जो हुआ है, 4 लेग से 2 लेग स्टैंस में जो हम आ गए हैं, तो the center of gravity is decreased. Center of gravity decrease हो गई है. Paraspinal muscles therefore have heavily loaded, and which eventually lead to back pain. So these are some reasons due to which we are facing back pain. These are, हम लोग ज़्यादा spine के anatomy physiology में नहीं जा रहे हैं, because it's a general talk. So we are not going very scientifically. Back pain दो types के हैं, acute back pain and chronic back pain. तो acute back pain क्या है? जनरली जो सब फेस करते हैं, आज सुबह उठे पीठ दुख रही है, 2 दिन से पीठ दुख रही है, बट व्हाई?
nobody is having spondylitis, ये वो तुरंत नहीं हुआ है, but then too you have that. So अगर ये जो acute back pain है, it starts quickly and lasts for less than 6 weeks. थोड़े दिनों में आपको अच्छा भी लगने लगता है, हाँ ठीक है, गया वीक में नहीं था, today I am better like. It may be caused by things like falling, lifting heavy things, working at desk all the day, maintaining incorrect posture. It is most common kind of pain. And chronic back pain, it lasts longer for about 3 months, over 3 months. जब आप, when you see that ऐसा कुछ है, it's not getting correct after some days, so you have to see your doctor for that. Now क्या causes है इसमें? बैक पेन के लिए जैसे हमने जनरल कॉजेज देखे, वैसे ये भी है कि डिस्क ब्रेकडाउन है, स्पैजम्स है, आपके मसल्स टेंस हुए हैं, या तो रप्चर्ड डिस्क है, या इंजुरीज है, स्प्रेन्स, फ्रैक्चर्स, एक्सीडेंट से हुई आपको, देन ऑल्सो यू गेट बैक पेन. बैक पेन कैन ऑल्सो बी कंट्रीब्यूटेड बाय सम कंडीशंस और डिसीजेस. क्या कंडीशंस है? जैसे प्रेगनेंसी है, किडनी स्टोन्स है, स्कोलोसिस है, स्पॉन्डिलोसिस अगर है आपको, आर्थराइटिस से आप अगर ये है, स्पाइनल स्टेनोसिस है, और कोई इन्फेक्शन है अगर ये स्पाइनल पैनल में, देन ऑल्सो यू गेट बैक पेन. नाउअडेज मॉडर्न लाइफस्टाइल हमने देखा है कि रैपिड, पूरा हम बार बार रैपिड पेस ऑफ लाइफ, प्रेशर ऑफ टारगेट्स, डेडलाइंस, speed of competitiveness और unhealthy habits and excessive stress, ये जो हमारा emotional disturbances बार बार हमें देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज़ों से हमें मिलता है स्ट्रेस. और ये स्ट्रेस हम बाहर निकालते हैं? नहीं. उल्टा हम सोते भी हैं नेक्स्ट दिन का स्ट्रेस लेके. I want to get up at 7 o'clock. I want to reach there by 9 o'clock. I want to complete this by this time. ये स्ट्रेस लेके ही सोते हैं. We are not taking out the stress at any time. और अगर ये मॉडर्न इसमें देखा जाए, मीन्स अभी मेरे भी बच्चे उतने ही छोटे हैं जितना कि ये आजकल, तो ये एक ही है, just for weekend and stress relief we go to malls. We go to malls. We are not going in nature. We are going to malls. और भीड़ में और इसमें और स्पीड में हम लोग वहाँ पर, लग रहा है हम लोग स्ट्रेस रिलीफ के लिए आ रहे हैं, बट नो स्ट्रेस रिलीफ. उल्टा हम लोग अनवांटेड चीजें खाते हैं, अनवांटेड चीजों के लिए पैसा भी खर्चा करते हैं, एंड देन वी कम एंड यू फील मोर टायर्ड. इंस्टेड ऑफ फीलिंग फ्रेश यू फील मोर टायर्ड. सो वो स्ट्रेस अगर बाहर निकल ही नहीं रहा है आपके शरीर से, तो वो आपके शरीर का कोई एक ऑर्गन को टारगेट करता है. If it targets your pancreas, you get diabetes. If your spinal column is get targeted, you get spondylitis. Your spinal से related vertebrae से आपका कुछ disturbances निर्माण हो जाते हैं उससे. हार्ट पे अगर आया तो हार्ट डिजीजेस, हाइपरटेंशन, all these stress related psychosomatic diseases, then पूरी लाइन लग जाती है. So modern medicines अगर देखे जाए तो हमने ये देखा है कि they have resulted of limited success in controlling maniac of back pain. Temporary relief आपको मिल जाता है, but root cause से your back pain is not cured. So they have the limitations. So for that we have to search for the alternate therapies. And now here comes my subject, that is the role of yoga, which can be an alternative therapy for back pain. Now before I starting talking on yoga, I must tell you all that if you have a back pain, then if it is a severe, don't ignore it. Yes, and not improve within a week, you should not ignore it and immediately visit your doctor. Get medical attention if you have back pain following by an injury. स्पाइनल में अगर कोई डिस्टर्बेंस है और उससे अगर आपका बैक पेन है, तो गेट मेडिकल अटेंशन फर्स्ट एंड देन ओनली ट्राई द अदर थिंग्स. नाउ द क्वेश्चन इज, कैन बैक पेन बी प्रिवेंटेड थ्रू योगा? यस, श्योर, इट इज पॉसिबल थ्रू योगा. क्यों?
because Patanjali's 8 limbs of Raja Yoga are nothing but the correct physio-psychological practices at physical, mental, emotional and spiritual levels. Whenever you perform yoga, आप कोई योगा क्लास में जाते हो या कोई योगा साधना आपको अगर आ रही है या कर रहे हो, तो ये आपके चारों लेवल्स पे काम करता है योगा. Yoga is nothing but effects or practices to attain perfection through control of your mind. क्योंकि आपका अगर मन वहाँ पे करने वाली क्रियाओं में है नहीं, तो आप योगा परफॉर्म कर ही नहीं रहे हो, राइट? इसके लिए ऑलवेज योगा मीन्स क्या है? टू ज्वाइन. योगा जो वर्ड है, आई वोंट से योगा, या परफेक्ट. योगा मीन्स टू ज्वाइन बॉडी एंड माइंड. और थोड़ा आगे जाके जैसे 8 लिम्स यमा नियम से स्टार्ट होते हैं और खत्म होते हैं समाधि पे. लिबरेशन, हर एक को वही चाहिए, आज के नहीं तो अगले कई जन्मों में, बट वी आर ऑल गोइंग टुवर्ड्स दैट ओनली. तो वहाँ पे योग हमें हमारा जीवात्मा से शिवात्मा मिलाने का भी काम करता है. सो that's why it's yoga. I never say it yoga because when I started my teachers training course, our Guruji Shri Krishna Vyavahari ji, very first day they told us, make with the spelling be yoga, but never pronounce it yoga. It's a yoga because it joins. Now, yoga is a science of body, mind and spirit, which gives valuable guidelines for healthy, harmonious and integrated personality development. कैसे? Yoga therapy is also very useful because it has holistic approach. Holistic कहेंगे तो यानी all levels पे आपके वो काम करता है. Emphasis is mainly on prevention. अगर आप कोई disease से अभी तक attack नहीं हुआ है, कोई disease, then the yoga is the best therapy for prevention first, and salvage if the disorder has already set in. अगर है तो वो भी. अभी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स मेनली कंसिस्ट क्या कंसिस्ट होता है? अगर आप योगा से करते हो तो चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, अपने आप आपके खाने पीने में, आपके सारे चीज़ों में, आपका गुस्सा कंट्रोल करने में, टू हैव पेशेंस, आपके सारे ये फैक्टर्स पे योगा काम करता है. रिड्यूसेस स्ट्रेस लेवल, कंट्रोल ऑफ ओबेसिटी, पोस्चरल डिफेक्ट करेक्शन. कोई आसन है जिसमें आप बिल्कुल फॉरवर्ड स्लाउच करके या इनकरेक्ट पोज में बैठ ही नहीं सकते हो. ऐसे ही वो आसन है कि यू हैव टू बी स्ट्रेट इन दैट. तो वो अपने आप आपका पोस्चरल जो डिफेक्ट है वो करेक्शन हो जाता है. योगिक प्रैक्टिसेस ऑफ अष्टांग योगा इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल अबाउट चेंजेस. बैक में हम देखते हैं क्या हमारी जो बैक है, स्पाइनल कॉलम बोलते हैं, जिसका स्पाइन हेल्दी है दैट द पर्सन इज हेल्दी. बिकॉज जो हमारी सारी नाड़ियाँ हैं शरीर में, उससे 33% ऑफ नाड़ीज आर एक्यूमुलेटेड विथ योर स्पाइन, छोटी छोटी नर्व्स. तो जब आप ये सारे स्ट्रेचेस लेते हो, हमारा स्पाइन अपवर्ड स्ट्रेच हो सकता है. वी कैन टेक ट्विस्ट, वी कैन फॉरवर्ड बेंड, वी कैन बैकवर्ड बेंड. थोड़ा सा कई आसनों में हम लैटरल बेंड भी करते हैं, जो डेली के हमारे रूटीन में लैटरल बेंड कभी नहीं होता है. फॉरवर्ड बेंड भी होता है, बट वो अननोइंगली फट से जल्दी में, तो दैट इज अगेन इनकरेक्ट पोस्चर. स्ट्रेच भी कर रहे हैं तो बार बार हम राइटी है तो बार हम राइट हैंड को ही ऊपर करेंगे, तो अपने आप इस इधर का आपका फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रहा है. सो बैक की ये सारी मूवमेंट्स हम कर सकते हैं, but in our daily life we are not doing, and if we are doing, we are doing it incorrectly. But yoga इसमें आपको ये सारे स्ट्रेचेस को प्रॉपरली कैसे करना है वो सिखाता है. नाउ बेनिफिट्स तो बहुत है, बोलने जाऊंगी मैं तो आधे घंटे से भी ऊपर हो जाएगा, but these are the some benefits which are related to our back pain today's subject. Asanas give outstanding benefits when performed under proper guidance. मैं इसको अंडरलाइन करना भूल गई हूँ. Proper guidance is a very key word in that. Yes, strengthen muscles to support the natural curve of spine. ये एक benefit है. Stamina increase होता है आपका.
फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज होता है. सेल्फ अवेयरनेस कैसे इंक्रीज होता है? व्हेन यू आर इन आसना, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग आसना, हम वो पोजीशन में कैसे जा रहे हैं, कौन से पार्ट पे तनाव आ रहा है, कौन से पार्ट पे दबाव आ रहा है, ब्लड फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, मैं प्रॉपरली नॉर्मल ब्रीथ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. ऑल दिस विथ अवेयरनेस यू डू द क्रियास, सो इट इंक्रीजेस योर सेल्फ अवेयरनेस. Good postures leading to healthier spinal discs and good alignment of the spine, hips and pelvis. These are the some asanas today we are going to see, which will give you these benefits and which will help you to prevent your back pain. Again, skills to manage stress and anxiety भी है वहाँ पे एक benefit. General health holistic approach जो हमने देखा, body, mind, स्पिरिचुअल लेवल और इमोशनल लेवल पे काम करता है, तो उससे आपकी जनरल हेल्थ भी मेंटेन होती है. सो टुडे वी विल सी सम यूजफुल आसनास टू प्रिवेंट बैक पेन. इफ यू हैव बैक पेन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट. अगर जनरल भी है, देन टू कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट एंड गेट एन एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ योर प्रॉब्लम. अगर उसमें कोई है तो योर डॉक्टर विल एडवाइज यू टू अवॉइड सर्टन मूवमेंट्स, क्योंकि अगर कोई सर्वाइकल में या कहाँ प्रॉब्लम है तो आप फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है, आपको ट्विस्ट नहीं लेना है. ऑल दिस थिंग्स विद एडवाइस एंड देन अकॉर्डिंगली अंडर गाइडेंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ अ क्वालिफाइड योगा ट्रेनर यू मे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस. नाउ व्हाइल प्रैक्टिसिंग योगा, पहली चीज ये है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट योर बॉडी. ईच एंड एवरी पर्सन इज हैविंग यूनिक बॉडी. तो हर एक की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, ये इतना फॉरवर्ड बेंड कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ. डोंट फील गिल्टी इन दैट. हर एक की फ्लेक्सिबिलिटी, हर एक का शरीर अलग है, अपना अपना यूनिक हर एक का बॉडी है. सो विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ओनली डू एज मच एज कंफर्टेबल यू कैन. ये योगा का पहला थंब रूल है. कोई शरीर से जबरदस्ती नहीं है. इसमें आइडियल पोज भले आपको दिखाई जाएगी कि फोरहेड नीज को लग रहा है, but if it is not your capacity, your body capacity, don't go for that. जहाँ तक आप झुक रहे हो वहीं तक झुको. शरीर को कोई जबरदस्ती से झुकाओ मत या कोई भी पोस्चर में डालो मत. These yoga postures are helpful in strengthening the back and maintaining general health of spine and will goodbye to back pain. Which are these positions? Vajrasan, that is a cat pose. Vakrasan. We are going to see some of these asanas here today. We will demonstrate it for you. Kati Chakrasan, Trikonasana, Uttana Vakrasan, Bhujangasana, Setuvandasana, Parvatasana, mountain pose, Shashankasana, rabbit pose. And main things are relaxation techniques. अब शरीर को तो आपने आसनों के माध्यम से कर लिया, उसके साथ माइंड जितना जुड़ना था जुड़ा, फिर भी अभी तक माइंड को कंट्रोल करना तो इम्पॉसिबल थिंग. तो आसनों के माध्यम से तो वो उतना होगा ही नहीं. बहुत उसको खींच के लाना पड़ता है बार बार. जब इंस्ट्रक्शंस आपको मिलती है, देन ओनली यू आर एबल टू डू दैट. आप खुद से बैठो एक आध आसन करने एंड यू विल सी कि अरे नहीं, फिर बार ऑफिस का थॉट आ रहा है, घर का थॉट आ रहा है, कुछ लाना है उसका थॉट आ रहा है, देन अगेन यू टेक योर माइंड देयर. बट रिलैक्सेशन टेक्निक्स में, दीज आर द गाइडेड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, उसमें यू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस एंड योर स्ट्रेस लेवल काफ़ी आपकी कम होने में ये टेक्निक्स मदद करते हैं. शवासना इज देयर, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, योग निद्रा, ये भी एक पार्ट है जो बहुत ही थोड़ा एडवांस लेवल पे है. बट इफ यू गो थ्रू दिस, यू 100% थोड़े दिनों में आपकी स्ट्रेस लेवल आपको कम करने में, आपकी थॉट प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट 2 थॉट्स के बीच का अंतर बढ़ाने के लिए तो भी ये सारे टेक्निक्स 100% काम करते हैं. एंड मेडिटेशंस आर ऑल्सो देयर. नादानुसंधान, ओम मेडिटेशन एंड चक्र मेडिटेशन.
but these again are all our guided meditations. या तो आपको आजकल सीरीज भी सारी मिल जाती है, so you can easily they are easily available. But अगर guided सामने किसी से आप instructions लेके करो, उसका बहुत अलग effect आता है, as per my experience till now. So we'll just see the practical things today. She is my friend Nandini. She has also done her teachers training diploma from Gantali Mitra Mandal Thane and giving her dedicated services there. And she has also completed her advanced diploma in yoga and philosophy from Mumbai University. Yes. So today, first we will see the first asana, Marcharasana, that is cat pose. For that we need to come in Vajrasana. This way. Very easy poses. If your spine has still not got any problem, आपके इसमें अगर कोई दोष नहीं है, easily you can perform these asanas. Yeah. We come to Vajrasana first. Right. Now, we'll take proper distance between legs. How she is measuring, see. First she has, yes, taken her elbows से लेके knees से लेके elbows तक किया है. Then this way also she has measured so that shoulder distance is maintained. Okay. Accordingly, same with the feet. Right. Now, Marjanasana part 1 में लोअर लंबार को नीचे और गर्दन को ऊपर, पीठ को नीचे की तरफ इनवर्ड हम लोग बैकवर्ड बेंड कर रहे हैं and throat is up. Right. Here you are getting pressure on your lower lumbar and stretch on your throat. Abdomen muscles are completely relaxed here. Right. Abdomen को खींच के नहीं रखना है. Continuously normal breathing. Here tendency is that कि हम गर्दन के साथ आंखों को भी ऊपर लेके जाते हैं. But drop down your eyeballs. And here you are getting pressure on your spine. यहाँ से सीधे हो जाएंगे. We'll come out of this pose. And now opposite effect, that is Marjanasana part 2. पीठ को ऊपर की तरफ खींच लेना है maximum and गर्दन को नीचे chin lock position. क्यों मैंने बोला डॉक्टर से कंसल्ट करो. अगर आपको सर्वाइकल में कुछ प्रॉब्लम है तो ये पोज आपको करनी नहीं है. To forward bend जो किया है अभी नेक का. So please consult your doctor before practicing this. Right. अभी opposite effect हो गया. Pressure था. Now stretch. तो स्पाइनल कॉलम आपका बहुत अच्छी तरह से ब्लड वेसल्स आपके वहाँ के एक्टिवेट हो रहे हैं. कम टू नॉर्मल पोजीशन. सारे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स भी आपके बहुत एट अ टाइम ऑपोजिट प्रेशर एंड स्ट्रेच लेने से एक्टिवेट हो रहे हैं एंड ब्यूटीफुल ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर स्पाइन. राइट. और योगा प्रैक्टिसेस करने के टाइम वन थंब रूल, कंटिन्यूअसली नॉर्मल ब्रीदिंग. यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट. Whatever posture you are performing, but there should be a normal breathing continuously. Right? कितना दबे करने का? ये आपके हिसाब से. अभी जैसे किसी को नीज का प्रॉब्लम है, पीठ का नहीं है भले मगर नीज का है, मगर नीज के लिए फिर आपको कुछ टर्किश टॉवेल के छोटा सा आप अगर उसके नीचे रख ले तो ये जो प्रेशर आ रहा है बॉडी का नीज पे वो कम हो जाएगा. ये आपके कैपेसिटी से, जैसे मैंने बोला, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी. आप अगर इस आसन में 4 से 5 ब्रेथ रह रहे हैं, इनहेल एक्सहेल 4 to 5 टाइम्स आप कर रहे हैं, स्टार्ट वहाँ से करिए आप एंड देन यू स्लोली इंक्रीज द 2 मिनट तक आसन हम इंक्रीज कर सकते हैं. द सिंगल पोज जो भी पोज है 2 मिनट्स के लिए आराम से हम रह सकते हैं, बट नॉट फ्रॉम इनिशियल स्टेज. इनिशियली आप ब्रेथ से काम लें. 4 breaths, 5 breaths. नेक्स्ट वीक में और एक आध ब्रेथ बढ़ा दीजिए आप. सो इट विल गिव यू फ्लेक्सिबिलिटी टू योर स्पाइन एंड ब्लड फ्लो ऑल्सो, ब्लड सर्कुलेशन ऑल्सो diminished. Okay. Then again we'll now release Vajrasana and come to sitting position. We'll see vertical stretch to your spine, that is Parvatasana.
माउंटेन पोज, यस, अर्ध पद्मासन। और अगर आप ये नहीं कर सकते हो, सीधे फोल्डेड लेग्स में बैठ जाओ, क्रॉस्ड लेग्स, नो मैटर, सीधे क्रॉस्ड लेग्स में बैठ जाओ। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हो, चेयर पे बैठ जाओ, चेयर पे बैठे बैठे वर्टिकल स्ट्रेच आप ले सकते हो, राइट। नाउ जॉइन योर हैंड्स इन नमस्कार मुद्रा, slowly and steadily take your hands up your head, touch your biceps to your ears, yes, biceps आपके टच हो रहे हैं एंड पूरा वर्टिकल स्ट्रेच है, साथ ही में आपके लंग्स भी एक्सपांड हो रहे हैं वर्टिकली। सो डीप ब्रीदिंग अगर आप यहाँ पे करते हैं तो इट गिव्स एक्स्ट्रा बेनिफिट टू योर लंग्स। So in this asana only we tell to do deep breathing. Otherwise all normal breathings, लंबा श्वास कर लो, हल्के हल्के छोड़ दो, right? Yes. Slowly and steadily take your hands down. Come to normal position. Very beautiful. आपके स्पाइन का आरोग्य अच्छा रखने के लिए इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रेच, वर्टिकल स्ट्रेच जो है प्रॉपरली आप, और आप देख रहे हो उनकी जो गति है आसन में जाने की और आसन छोड़ने की, दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। द स्पीड, जस्ट पता है पोजीशन में कैसे जाना है और गए छोड़ दिया, नो, यू हैव टू गो स्लोली, कम आउट ऑफ आसन ऑल्सो वेरी स्लोली, इट गिव्स नाइस इफेक्ट। नेक्स्ट आसन सेतुबंधासन, इट्स अ लाई डाउन। आसनास 4 पोजीशन में परफॉर्म किए जाते हैं, सिटिंग पोजीशन, लाई डाउन ऑन योर बैक, लाई डाउन ऑन योर एब्डोमेन, दैट इज सुपाइन पोस्चर, प्रोन पोस्चर एंड स्टैंडिंग पोस्चर। तो सम ऑफ पोस्चर्स हम देखेंगे, इसमें अभी ये है सेतुबंधासन, दैट इज अ ब्रीच पोज, दिस इज द रिलैक्सेशन पोज इन लाई डाउन पोजिशन। ये हम एक ब्रीच बना लेते हैं, पीठ को पूरा बैकवर्ड बेंड करते हैं हम, पीठ पर फिर भी प्रेशर आ रहा है और एब्डोमेन एरिया पे पूरा स्ट्रेच आता है, राइट। विल टेक पोजिशन, जॉइन योर लेग्स, हैंड्स बिसाइड योर बॉडी, यस, स्लोली फोल्ड योर लेग्स इन योर नीज, राइट। इफ पॉसिबल, now she is performing for last so many years, so she might be showing you all ideal poses, but according to your capacity, right? If it's not possible to touch your heels, no matter, side में आप हाथ रख दो वैसे ही। And now you will just shift your middle part of your body, spinal area को हम पूरी तरह से ऊपर उठा लेंगे, perfect, very good। स्टार्टिंग में आपको पैर जोड़ के नहीं हो सक रहा, पैरों में डिस्टेंस लेके करेंगे, नो मैटर। द मेन थिंग इज दैट द इफेक्ट यू आर गेटिंग ऑन स्पाइन, राइट। आपके बैक को जो मिल रहा है इससे स्ट्रेच, वो इम्पोर्टेंट है, राइट। स्लोली एंड स्टेडीली कम डाउन एंड रिलैक्स। यहाँ पे टेंडेंसी होती है बिकॉज वी आर गोइंग इन सम डिफरेंट पोस्चर, हम ये पोजीशन को मेंटेन करने के लिए we'll just hold our breath. No, you have to be aware of that in this posture also you are breathing normally. क्या है ना, abdomen से ऊपर आ जाता है थोड़ा सा में, तो ये मेंटेन करने के लिए हम पूरी तरह से होल्ड कर लेते हैं breath को, but you have to be aware of it. In posture also, position also, I am breathing normally, right? Turn to any one side and come to standing position. ये लिफ्ट नहीं कर सकते हो क्या? आप लिफ्ट नहीं कर सकते हो तो दूसरे आसन कर सकते हो, नो नीड कि ईच एंड एवरी आसन हमने करना है। आपके एज के हिसाब से आप जो कंफर्टेबल आप फील कर सकते हो, जैसे वर्टिकल स्ट्रेच देखा वो आप इजीली कर सकते हो, राइट। ट्विस्ट्स ले सकते हो। उठने के टाइम राइट साइड से कि लेफ्ट साइड से? एनी साइड विद कंफर्टेबल, नो नीड, वैसा कुछ एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, राइट। यस,
We will see Sulabha Chakrasana in this. Distance between your legs. Distance thoda sa. Yes. Hands parallel to the ground. Horizontally. Yes. Raise your right hand up. Touch your biceps to your ears. Give a nice stretch to your hand. And slowly and steadily bend down on your left side. Perfect. See, perfect lateral bend. यहाँ पे कोई टेंडेंसी होती है, मैं दिखा रही हूँ रॉन्ग, बैक फॉरवर्ड बेंड होने की. नो, आपको परफेक्टली लैटरल बेंड में होना है. द हैंड which is down is totally relaxed. उसको stiff नहीं रखना है. This hand is totally relaxed. And now there is a total stretch on your right side and pressure on your left side. And lateral bend to your spine. Relax. धीरे धीरे सीधे हो जाएंगे. Perfect. Slowly take your hand down. Same posture now. Another side. Yes, raise your left hand up. Touch your biceps to your stretch and bend on your right side. Now you have stretch on your left side, pressure on your right side. और spine फिर से वो side में lateral bend हो रहा है. तो जितने बार आप spine को bend कर रहे हो, twist दे रहे हो, वहाँ के सारे blood vessels activate हो रहे हैं, वहाँ के muscles strengthen हो रहे हैं, वहाँ पे muscles weak है तो धीरे धीरे आपके strengthening हो जाएगी. Relax, थोड़े थोड़े धीरे से ऊपर आ जाए. Relax. Good. Perfect. Bhujangasana. Right? Prawn posture में. This is also very safe आसन. उसमें कोई ये नहीं है. अगर normal breathing के साथ आप करते हो, prawn posture में Bhujangasana. इसको योगा के इसमें विपरीत शयन स्थिति कहा जाता है. बैठक स्थिति, शयन स्थिति, विपरीत शयन स्थिति और दंड स्थिति. Now we'll see विपरीत शयन स्थिति. Right. इसमें posture देख लीजिए relaxation का. This is also very beautiful pose. आप दूसरा कोई आसन नहीं कर सकते हो. Itself is called Makrasana. That is a relaxation position in prawn posture. आपके पैरों में डिस्टेंस है काफी अच्छा खासा और आपके हील्स इनसाइड, टोज आउटसाइड. और आपके हाथों का आधार आप एक चिन के साथ ले लीजिए, सिर के साथ रख दीजिए, या तो कंफर्टेबल है तो हाथ बॉडी के साइड में रख दीजिए. लाइक दिस. दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल रिलैक्सेशन पोजिशन. और आपके बैक के लिए भी ये बहुत रिलैक्सिंग है. या तो और एक बैक के लिए टीवी पोस्चर है, बैक में पेन हो रहा है, यू जस्ट लाई डाउन इन दिस पोस्चर. बहुत अच्छा खासा आपके बैक को रिलीफ मिलता है. लोअर लंबर तक प्रेशर है आता है आपके स्पाइन पे. इट गिव्स नाइस. सेम वे इट्स गिविंग प्रेशर टू योर एब्डोमेन एरिया आल्सो. आपके गैसेस रिलीज होने में मदद होती है. आपके एब्डोमिनल जो फंक्शंस है वो अच्छी तरह से काम करते हैं. दिस इज टीवी पोस्चर, यू कैन कॉल दिस. नाउ वी गो इन भुजंगासन के स्टार्टिंग पोज में जाएंगे. पैरों को जोड़ लेंगे. यहाँ पे भी ये आइडियल पोजेस दिखाई जा रही हैं. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद जॉइंट लेग्स, जस्ट टेक डिस्टेंस बिटवीन लेग्स. राइट? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं पहले से बोल रही हूँ. राइट? नाउ टेक योर हैंड्स बिसाइड योर चेस्ट. आपकी लास्ट रीब है, वहाँ पे आपके अंगूठे आएंगे. राइट? एंड टेक योर एल्बोज टुवर्ड्स ईच अदर. This is and forehead on ground. This is the starting position of asana. Now slowly and steadily raise करें अपने forehead को और धीरे धीरे ऊपर आते हुए stretch your hands. सरल हस्त भुजंगासन. पूरी तरह से आपके बैक पे प्रेशर आता है. ब्यूटीफुल साइड. साथ ही में ये आपके थ्रोट को भी स्ट्रेच दे रहा है. चेस्ट को भी आपके एक्सपांड कर रहा है. आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है. ओनली फॉर बैक नहीं, हर एक आसन बहुत सारे ऑर्गन्स पे एक साथ काम करता है. राइट? स्लोली एंड स्टेडीली. यहाँ पे आपको नॉर्मल ब्रीथ करना है. पोस्चर में जाके एंड में
पोजीशन के लिए रुकना नहीं है, श्वास रोक के, श्वास कंटिन्यूअसली चालू. रिलैक्स. कम डाउन वेरी स्लोली एंड रिलैक्स. Perfect. Good. एक बैक का टेक्निक देख लेते हैं, जो जैसे आपने बोला अगर और ओल्ड एज के लिए ज़्यादा कोई आसन नहीं, अगर आपको बैक को रिलैक्स करना है तो जस्ट टच आवर बैक टू फ्लोर. lie down on your back. पैरों को थोड़ा सा नीज में फोल्ड करके थोड़े डिस्टेंस पे रख लीजिए. यस, डिस्टेंस बिटवीन योर लेग्स. यस, हाथ साइड में है शरीर के. अब ऐसे सोने के बाद द लोअर लंबर इज नॉट टचिंग द ग्राउंड, राइट. हम देखते हैं, कभी भी सो के देखिए आप, वो पोर्शन जमीन को टच नहीं होता. यहाँ पे विल प्रेस दैट पोर्शन विद फुल अवेयरनेस. प्रेस करो, लिफ्ट करो, प्रेस करो, लिफ्ट करो 4 to 5 times and you will feel amazing relaxation to your body. छोटे छोटे टेक्निक से आप आपकी बैक को रिलैक्स कर सकते हो. दिन भर के डेली वर्क के बाद, ट्रैवलिंग के बाद अगर आपकी बैक थोड़ी सी स्ट्रेस लग रही है आपको, यू कैन गो फॉर दिस. यू कैन गो फॉर मार्जरासन स्ट्रेच एंड प्रेशर. इमीडिएट आपकी बैक पे जो आया हुआ स्ट्रेस है वो निकल जाए. Relax. Okay. So all these are about asanas. Now, if you are interested, we can go for a quick relaxation technique. Awesome. Not shavasana. Sure. Yeah. Quick relaxation technique, sitting in chairs. थोड़े से chairs को distance में बढ़ा दीजिए ताकि आपके हाथ पैर आप relax कर सकें. Okay. Yes. Remove your specs. पैरों को थोड़ा सा आगे की तरफ फैला लीजिए. टेक डिस्टेंस बिटवीन योर लेग्स. हैंड्स को थोड़ा सा आपके नीज पे रख दीजिए. If you want, you can also take the chair. No. And This, keep your hands on your knees. अब पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए. Relax your body. Come and close your eyes. Yes. Be aware of your body posture. कहीं कोई ज़्यादा तनाव या दबाव महसूस कर रहे हैं, धीरे से उसको रिलीज कर लें. Relax. Now take your awareness to your toes. So, heels. पैर छोड़ दीजिए आगे, अंदर. पैर को आगे की तरफ छोड़ दीजिए. Relax. Ankle joints, calf muscles, knee joints, thigh muscles, pelvic joints, buttocks and wrist. Lower body is totally relaxed. Release and relax each and every part, right from your toes to lower back. Now shift your awareness to your lower abdomen. Relax your abdomen. Relax your lower liver. Relax internal organs of your abdomen. धीरे धीरे ढीला छोड़ दें आपके पेट के अवयवों को भी. Release and relax your chest part. Release and relax your shoulders. Shoulder blades, deltoid muscles, and very important, release and relax your spine, each and every vertebra, part by part. Relax. Completely relaxed. Release and relax your biceps, triceps, elbow joints,
forearms, wrist joints, palms, back of your palms and fingers. Middle part of your body is totally relaxed. हर एक अवयव को पूरी तरह से ढीला छोड़ दे. Relax. Now gulp a little saliva. Release and relax your throat, neck, chin, lips, chest, nose, nostrils, ears, eyes, eyelashes, eyeballs, eyebrows, forehead, top of your head and back of the head. Upper part of your body is totally relaxed. On physical level, now you are completely relaxed right from your toes to top of your head. Gently shift your awareness to your breathing now. Breathe in, breathe out. Inhale, exhale. श्वास की गति को बदलने का प्रयास न करें. शरीर स्थिर हुआ है, इसीलिए आपका श्वास भी काफी धीमा मंद चल रहा है. Just be aware of your breathing. देखें, ध्यान से देखें अपने श्वास को, जिसके बिना आपका जीवन नहीं. एक निष्काम कर्मयोगी की तरह आपसे कोई फल की अपेक्षा न रखने वाला श्वास सतत कार्यरत है. पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ अपने श्वास को महसूस करें. फील योर ब्रेथ. अब धीरे से ध्यान दें अपने पेट की तरफ. श्वास अंदर, पेट ऊपर. श्वास बाहर, पेट नीचे. महसूस करें अपने एब्डोमिनल मूवमेंट को और try to synchronize your breathing pattern with your abdominal movement. You inhale, stomach bulges up. You exhale, stomach sinks down. Try to coordinate your breathing with your abdominal movement. तीन चार श्वास के बाद धीरे धीरे अपना ध्यान ले जाएं आपके नॉस्ट्रिल्स पर और महसूस करें अंदर जाने वाली हल्की ठंडी हवा, बाहर निकलने वाली हल्की गर्म हवा. फील योर ब्रेथ. नॉस्ट्रिल्स के वॉल्स को स्पर्श करने वाली हवा को महसूस करने की कोशिश करें. अंदर जाने वाला हल्का ठंडा श्वास, बाहर निकलने वाला हल्का गर्म श्वास. अब आपके श्वास के साथ जोड़ दें आपकी भावनाओं को. हर अंदर जाने वाले श्वास के साथ मैक्सिमम ऑक्सीजन, चैतन्य, ऊर्जा, पॉजिटिविटी मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है और हर बाहर निकलने वाले उच्छ्वास के साथ मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड, मेरी सारी चिंताएं, तान तनाव, स्ट्रेस, नेगेटिविटी, व्याधि के सारे कारण, टॉक्सिन्स बाहर जा रहे हैं. Breathe with feelings. पूरी तरह से अपने श्वास के साथ जोड़ दें आपकी भावनाओं को. अगर आप देखें, पहले पेट ऊपर नीचे, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट. दूसरा, अंदर जाने वाली ठंडी हवा, बाहर निकलने वाली गर्म हवा. अगेन वन पेयर ऑफ ऑपोजिट, ठंडा गर्म. अंदर जाने वाली सारी पॉजिटिव चीजें, बाहर निकलने वाली सारी नेगेटिव चीजें. वन पेयर ऑफ ऑपोजिट. अपने ही शरीर में घटने वाली इन पेयर ऑफ ऑपोजिट्स को जब आप शांत चित्त से देखते हैं तो जीवन में आने वाली अप एंड डाउन्स को, पेयर ऑफ ऑपोजिट्स को, यश अपयश, सारी चीजों को आप अच्छी तरह से फेस करने के काबिल हो जाते हैं. धीरे से एक श्वास लेंगे और श्वास छोड़ने के साथ ओम का उच्चारण करेंगे.
पूरी तरह से एक श्वास छोड़ दो, दीर्घ और गहरा श्वास भर लो एंड चैंट ओम। Feel the vibrations of Omkara in your body, in your mind, and feel the peace of mind. पूरी तरह से शरीर स्थिर है, श्वास धीमा मंद है, उसी के साथ आपका मन भी काफी शांत है। दो विचारों के बीच का अंतर काफी बढ़ गया है। Feel the peace of mind. Experience the peace of mind. और महसूस, अब देखते हैं आप मन की तरफ, तो सिर्फ ये महसूस होता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, शांत लग रहा है, प्रसन्न लग रहा है। कभी न मिलने वाली ऐसी शांतता का मैं अनुभव कर रहा हूँ। मन में यही विचार रखते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों को एक दूसरे पर मले। Rub your palms, generate heat, massage around your eyes, and gently open your eyes with beautiful smile on your face. Hari Om. Very well. Thank you. Thank you.